ओके लेट मी स्टार्ट। फीचर्स ऑफ एक्सेस से हमें पढ़ना है, पेज नंबर 49 पे आ जाइए। ओके स्टूडेंट्स, हेलो। फीचर्स ऑफ एक्सेस, creating a database can be created using the following options. Now we have to create a database using the following option. Page number 49, students, page number 49. A database can be created using the following options. ठीक है, we have to use some following options to create a database. पहला है database wizard. पहला क्या है? A database wizard. Database wizard is used to create tables. देखिए wizard क्या होता है? Where we have to create the tables over there. Database wizard is used to create tables, forms, queries and reports by following a series of steps provided by the wizard. ठीक है, तो wizard में क्या होता है? We have to follow the some steps over there to create our tables, forms, queries and reports over there. ठीक है, मतलब we have to follow some steps over there. Some steps given to the user to create a tables, forms, queries and reports over there in the database. जैसे suppose we in the mail merge किया था in the previous class 7th class में, you have to done mail merge. Everybody have done ना? Hello. Hello. Students, in the previous class you have done the mail merge or not? अरे इतना टाइम क्यों लगता है बोलने में भाई? तो इन द मेल मर्ज नहीं किया है, तो मेल मर्ज भी हम लोग जब करते हैं MS वर्ड में, तो वी हैव टू यूज द विजार्ड ऑप्शन ओवर देयर. तो some steps to follow the creating a mail merge over there. ठीक है, suppose we have to create a mail merge, we have to follow some steps over there. ठीक है, तो इसी तरीके से database wizard is used to create tables, forms, queries and reports by following a series of steps provided by the wizard. The wizard provides a step-by-step process to achieve the desired result. ठीक है, तो the wizard provides step by step process होता है to achieve the desired result. दूसरा एक process होता है blank database option. तो blank database option क्या है? Blank database option is used to create a blank database. All other database objects should be created manually. Clear? Should be created manually. तो manually, यहाँ पे manually we have to create a manually database, blank database to create, मतलब एक blank database यहाँ पे manually create करेंगे. Follow some steps. Creating database using blank database में कैसे, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? हेलो हेलो. ओके, क्रिएटिंग डेटाबेस यूजिंग ब्लैंक डेटाबेस. अब कैसे, हाउ टू क्रिएटिंग डेटाबेस यूजिंग ब्लैंक डेटाबेस. तो ब्लैंक डेटाबेस के कैसे क्रिएट करेंगे वो हम देखेंगे. ठीक है, ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? हेलो. तो वी हैव टू क्रिएट डेटाबेस. The blank database option helps to create a blank database in which the tables, queries, forms and reports can be added according to the requirement. Okay. Create blank database in which the tables, queries, forms and reports can be added according to the requirement. Suppose according to your requirements, need of your requirement you have to create the tables, queries and forms and reports over there. ठीक है, जैसी जैसी हमारी requirements होगी. ठीक है, तो अब एक बता रहा है the step to create a blank database in the MS Access starting window. select file. सबसे पहले हम किस में जाएंगे? फाइल में जाएंगे. देखिए नीचे फिगर बना हुआ है, फिगर आप लोग देखते जाएंगे. In the MS Access starting window,
फाइल सेलेक्ट फाइल, फिर न्यू में जाएंगे, न्यू में और प्रेस कंट्रोल प्लस एन। द न्यू फाइल टास्क पेन appears on the right of the MS Access window। ओके, राइट साइड में पेन में दिख रहा होगा ब्लैंक डेटाबेस। ठीक है, अविरल कुमार बेटा अपना माइक बंद करो, आवाज आ रही है। अविरल कुमार, ये किसके माइक से आ रही बेटा? वो आवाज थोड़ा बंद करो, उधर कोई बात कर रहा है तो। हाँ ठीक है, अब सही है। चलो, तो द न्यू फाइल टास्क पेन अपीयर्स ऑन द राइट ऑफ द MS एक्सेस विंडो में। ठीक है, तो हम लोग फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्रिएट करेंगे, या शॉर्ट ऑप्शन है हमारा कंट्रोल+N। ठीक है, वहां वी हैव टू चूज द ब्लैंक डेटाबेस ओवर देयर। ठीक, ब्लैंक डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे। ठीक, आगे आओ, सेलेक्ट ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन ऑन द न्यू सेक्शन ऑफ द टास्क पेन, द न्यू डेटाबेस विंडो अपीयर्स। तो वहाँ पे एक न्यू डेटाबेस फाइल विंडो अपीयर्स होगी, वहाँ पे फाइल नेम डाल देंगे। फाइल नेम मतलब हमें जिस नाम से डेटाबेस बनाना है वहाँ पे फाइल का नेम डाल देंगे। ठीक, एंटर द नेम ऑफ द डेटाबेस इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट नाम का एक डेटाबेस हमारा, सपोज वी वांट टू क्रिएट अ स्टूडेंट डेटाबेस, तो वहाँ पे स्टूडेंट डेटाबेस नाम डालें। क्लिक द क्रिएट बटन टू कंप्लीट द प्रोसीजर। उसके बाद वी हैव टू क्रिएट बटन, क्लिक द क्रिएट बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, कंप्लीट द प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। डेटाबेस इन एक्सेस हैव अ डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ .mdb फाइल। अच्छा, डेटाबेस MS एक्सेस में जो एक्सटेंशन होता है डेटाबेस का, वो क्या होता है? इसमें एक्सटेंशन क्या हो, जैसे वर्ड में .docx होता है, एक्सेल में .xlsx होता है। ठीक है, पावर पॉइंट में .pptx होता है। तो इसी तरीके से एक्सेस में क्या होता है? .mdb क्या होगा? हेलो .mdb क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? हेलो, ओके। तो यहाँ पे क्रिएटिंग टेबल, आप देखो ये टेबल इसमें हमें क्रिएट करना है। कैसे एक टेबल क्रिएट होगी? एक्सेस टेबल्स आर अ ग्रिड मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो एक्सेस टेबल्स जो होती हैं एक ग्रिड के फॉर्मेट में होती हैं, मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में होती हैं। ठीक, वी हैव ऑलरेडी नो अबाउट द थिंग्स व्हाट आर द टेबल्स इज अ कलेक्शंस ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, some vertical lines and some horizontal lines over there. The intersections of vertical and horizontal lines, it would be a cell over there. एक cell बनती है to write the name and some particular things over there. ठीक, consider the student detail table shown below. The table is divided into several rows. Each row in the table contains information about a student. ठीक, द टेबल इज डिवाइडेड इनटू सेवरल रोज। टेबल जो डिवाइड होती है सेवरल रोज में डिवाइड होती हैं। ईच रो इन द टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट, और हर रो में स्टूडेंट की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन डिफाइंड होती है। दीज रोज ऑफ इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स। अब पर्टिकुलर अगर एक स्टूडेंट्स की एक इंफॉर्मेशन पूरी डाली जा रही है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल जैसे पूरी हमने फिल कर दी, तो वो पूरा एक चीज रो जो पूरी कंप्लीटेड होगी इंफॉर्मेशन से स्टूडेंट्स की, वो एज ए रिकॉर्ड काउंट की जाएगी। क्या रिकॉर्ड? एज ए रिकॉर्ड। कैसे काउंट की जाएगी? एज ए रिकॉर्ड। क्लियर? कॉल्ड रिकॉर्ड्स। फील्ड्स इन अ टेबल आर द कॉलम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और फील्ड्स क्या होंगी? टेबल में जो फील्ड्स डिफाइन होंगी टेबल में, वो कॉलम के रूप में डिफाइन होंगी। कि मतलब कॉलम में जैसे पहला फर्स्ट कॉलम है उसमें हमने लिख दिया एडमिशन नंबर, तो वहां पे एडमिशन नंबर के अकॉर्डिंग एडमिशन नंबर आएगा, तो वो हमारी एक फील्ड कहलाएगी। फील्ड क्या कहलाएगी? फील्ड मतलब समझ लो पर्टिकुलर जो डेटाबेस है उसमें कौन कौन सी फील्ड है।
Suppose we have to create a student database. So what are the necessary requirement for student database? First of all, the registration number of a student, the name of the student, father's name of the student, mother's names of the student, class, section, address, mobile number. So these are the essential requirement of the student. So these are called the field, and these are defined by column. ओके, क्लियर? ठीक है, क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? हेलो, ओके। तो व्हाट आर द फील्ड्स? तो दीज आर द फील्ड्स। ठीक है, क्लियर? अब हमें कहाँ पे देखना है? ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया रिकॉर्ड फील्ड्स। एवरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन द टेबल इज अ वैल्यू। अब एवरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो टेबल में होती है एक वैल्यू के रूप में होती है। P001 is the value under admission number. P001 is the value under admission number and 6 is the value under class 6। तो एडमिशन नंबर में P001 हो गया, तो उसका एडमिशन हो गया। स्टूडेंट का नेम जैसे अमन, डेट ऑफ बर्थ 20.01.2000, एड्रेस C5 बसंत विहार ND। ठीक है, क्लास 6 सेक्शन A। ओके, इस तरीके से पर्टिकुलर। अब ये जो पूरी एक इंफॉर्मेशन रो में हमने डाली है, दिस इज कॉल्ड रिकॉर्ड ओवर देयर। क्लियर? वैल्यू इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो वैल्यू जो भी लोकेट की जाएगी एट द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। तो कॉलम और रो के इंटरसेक्शन पॉइंट पर, दिस इज कॉल्ड द सेल ऑफ द टेबल। ठीक, एक्सेस allows creating tables using the design view, data sheet view and table wizard option। टेबल अगर हम जब डिफाइन करेंगे एक्सेस में, तो तीन चार तरीके से। एक तो डिजाइन व्यू, सबसे पहले वी हैव टू क्रिएट द डिजाइन ऑफ द टेबल। ठीक है, टेबल डिजाइन करेंगे। सब व्हाट टाइप ऑफ टेबल्स वी हैव? सपोज वी वांट टू क्रिएट अ टेबल ऑफ 3x4 3x4 क्रॉस टेबल चाहिए, या 2x2 की टेबल चाहिए, 5x3 की टेबल चाहिए। ठीक है, इट विल बी डिपेंड ऑन द डिजाइन व्यू। डेटा शीट व्यू में भी, एंड टेबल विजार्ड। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? हेलो, सभी को समझ में आ रहा है? इफ यू हैव एनी डाउट डायरेक्टली आस्क टू मी इन द जूम क्लास। किसी यहाँ तक एवरीबडी हैव टू क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, चलिए अब आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, क्रिएटिंग टेबल इन डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में कैसे हम टेबल क्रिएट करेंगे? दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द न्यू टेबल डायलॉग बॉक्स। न्यू टेबल डायलॉग बॉक्स में हम जाएंगे। देखिए ऑप्शन वहाँ फिगर बना हुआ है, दिख रहा होगा आपको। तो सब फर्स्टली यू हैव टू क्लिक द बटन न्यू ओवर देयर and select create table in design view. To open the new table dialog box, open the database. The database window will appear. database window वहाँ पर appear होगी। ठीक, the database window will appear। click the tables button on the object bar। फिर object bar पे हमें क्या देखो, in the database tables, reports, queries and forms, these are called the objects of the table, object of the database। clear? हेलो, अगर आपसे कहे कि what are the objects of the database, तो tables, queries, forms and reports are the object of the table database, object of the database। ठीक है, click the new button on the database toolbar। ठीक है, click the new button on the database toolbar। The new table dialog box will appear। click the design view option। ठीक, समझ में आ रहा है? क्लियर? हेलो,
ओके, अब the new table dialog box will appear. Click the design view option and click the OK button. ठीक, the table will be displayed in the design view. अब वहां पे हम डिजाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो, क्लियर है? द टेबल विल बी डिस्प्लेड इन द डिजाइन व्यू. अब वहां डिजाइन व्यू में हमें टेबल डिस्प्ले होगा, ठीक है. अब डिजाइन व्यू में वी हैव टू कॉलम्स ओवर देयर, फील्ड नेम एंड डेटा टाइप. ठीक है, सब फर्स्टली वी हैव टू डिफाइन द fields of the table, which type of fields you have to be take over there. Suppose we have to create the student details. तो स्टूडेंट डिटेल्स अगर हमें बनानी है, टेबल डेटाबेस बनाना है, तो व्हाट आर द फील्ड्स ओवर देयर. और सपोज वी हैव टू क्रिएट अ फील्ड फॉर द पर्टिकुलर स्टूडेंट डिटेल, तो वी हैव डिफाइनिंग द field and which type of data type it contain. ठीक है, सपोज फील्ड लिया एडमिशन नंबर, तो एडमिशन नंबर उसका डेटा टाइप भी वी हैव टू डिफाइन ओवर दिया. देखिए, अब एडमिशन नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये ऑलवेज कैसे होते हैं? न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक. भाई आपका रोल नंबर क्या होगा? रोल नंबर एक आपका न्यूमेरिक फॉर्म होगा कि उसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हो? हेलो भाई, रोल नंबर कैसा होगा? इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक ना, न्यूमेरिक फॉर्म, यानी न्यूमेरिक मतलब 1 2 3 4 5. यू डोंट हैव टू राइट द टेक्स्ट ओवर देयर ना. टेक्स्ट तो लिखते नहीं होगे कि ONE1 लिख रहे हैं, TWO2 लिख रहे हैं, नहीं. तो इसलिए तो वहाँ डेटा टाइप उसका डिफाइन करते हैं. डेटा टाइप, अब डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप इज अ टाइप विच द फील्ड इज टू बी डिफाइंड. कि सपोज एडमिशन नंबर है, तो वो, अब इसमें देखिए टेक्स्ट लिख दिया है. टेक्स्ट इसलिए लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे P001 लिख रहे हैं ना, स्टार्टिंग टेक्स्ट से कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ले लिया. बट एडमिशन नंबर अगर आप सिंपली हम 001 भी कर सकते हैं, तो वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी. इसके बाद स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम हो गया. नेम क्या होगा? नेम टेक्स्ट में होगा. स्टूडेंट नेम किस में होगा? टेक्स्ट में होगा कि नहीं? हेलो, हेलो, ठीक है. डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्या होगी? डेट ऑब्लिक टाइम. डेट ऑफ बर्थ क्या हो जाएगी? डेट ऑफ बर्थ, इसमें डेट ऑब्लिक टाइम में देना है कि जो भी टाइम होगा. ये फील्ड इन्होंने ऐसे ही दिखा दिया है. डेट ऑफ बर्थ भी हमारा न्यूमेरिक में होगा, ठीक है. इसके बाद एड्रेस, एड्रेस हमारा मेमो फील्ड लेंगे. एड्रेस में हम कौन सी फील्ड लेंगे? डेटा टाइप कौन सा लेंगे? मेमो. यहाँ दिखाया नहीं है, पर हम इसको जब करवाएंगे लैब में, जब इसकी टेबल क्रिएट करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे देखेंगे अच्छे से, ठीक है. क्लियर? तो मेमो हो गया. क्लास, क्लास हमारा जो भी है रोमन नंबर है, तो टेक्स्ट में ले लेंगे. सेक्शन टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक. क्लियर? इस तरीके से हम लोग टेबल क्रिएट कर लेंगे. नेक्स्ट पेज पे आइए. द टेबल, द टेबल डिजाइन व्यू विंडो कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है. पहला द फील्ड एंट्री पेन, एक होता है फील्ड एंट्री पेन. तो फील्ड एंट्री पेन इज यूज फॉर एंटरिंग द फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड देयर डिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो फील्ड एंट्री पेन में क्या होगा हमारे पास? एंटरिंग द फील्ड नेम, फील्ड नेम्स होंगी, उसके बाद डेटा टाइप होगा और उसके डिस्क्रिप्शन. ठीक है, डिस्क्रिप्शन समझ रहे हो? फील्ड में हो गया भाई नेम, जैसे नाम डाल दिया, एडमिशन नंबर, ये सब फील्ड हो गए. डेटा टाइप, उसके अकॉर्डिंग उसका डेटा टाइप सेट करिए. डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आपने लिख दिया एंटर आ नेम, एंटर एडमिशन नंबर, ये चीज. ठीक, क्लियर? हेलो, यहाँ तक सभी को क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं बाकी और सब बच्चों को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है द फील्ड प्रॉपर्टीज पेन. फील्ड प्रॉपर्टीज पेन क्या होता है? फील्ड प्रॉपर्टीज पेन इज यूज्ड फॉर सेटिंग द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज फॉर ईच ऑफ द फील्ड्स. ठीक,
तो field properties pane is used for setting the required properties for each of field. वहां पर हम जो भी फील्ड की एक प्रॉपर्टीज है वहां पे सेट करेंगे, ठीक है। सेटिंग द रिक्वायर्ड प्रॉपर, जो भी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज होंगी उनको वहां पे सेट करेंगे। जैसे कि फील्ड प्रॉपर्टीज पेज नंबर 51 पे आओ, वहां देखो दिया हुआ है। अभी मान लो फील्ड साइज हमने 50 कर रखा है, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेना चाहिए वो सेट कर दिया मान लो, ठीक है। इसमें कुछ ही फील्ड को सेट करते हैं, ठीक, क्लियर है। हेलो, अब एंटर डेटा इन द फील्ड एंट्री एंड फील्ड प्रॉपर्टीज एरिया, द टेबल विल क्रिएटेड इन द डिजाइन व्यू, टेबल विल बी क्रिएटेड इन द डिजाइन व्यू। अब देखिए, अब यहाँ पे फील्ड प्रॉपर्टी और उसका डिस्क्रिप्शन, जो भी हमारे पास फील्ड प्रॉपर्टी दी है उन एक एक के बारे में, सबके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पहला दिया है फील्ड साइज, क्या दिया हुआ है, फील्ड साइज। तो फील्ड साइज प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द मैक्सिमम साइज फॉर डेटा दैट is stored in a field that is set to the text data type, comma the number data type or the auto number data type, ठीक है। तो हमने यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं फील्ड की साइज कितनी होनी चाहिए। सपोज उसमें हम टेक्स्ट डाल रहे हैं तो नंबर ऑफ टेक्स्ट कितना एक बार में ले लें, वो फील्ड साइज हमने सेट कर दी तो वो कुछ भी ले सकता है। फॉर्मेट एक आता है फील्ड प्रॉपर्टी, ये क्या होता है, फॉर्मेट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू कस्टमाइज द वे दैट नंबर्स, कॉमा डेट्स, कॉमा टाइम्स एंड टेक्स्ट अपीयर एंड प्रिंट। द फॉर्मेट प्रॉपर्टी ओनली कंट्रोल्स हाउ द इंफॉर्मेशन इन द फील्ड अपीयर्स। देखो, फॉर्मेट प्रॉपर्टी जो होती है वो कस्टमाइज वे होता है नंबर्स को, डेट्स, टाइम्स और टेक्स्ट अपीयर करने के लिए और प्रिंट करने के लिए। ओनली ये जो फॉर्मेट प्रॉपर्टी होती है ओनली कंट्रोल हाउ द इंफॉर्मेशन इन द फील्ड अपीयर, कि फील्ड में हमारी इंफॉर्मेशन कैसे अपीयर होगी उसको कंट्रोल करने के लिए इस फॉर्मेट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। द प्रॉपर्टी डज नॉट स्टोर द इंफॉर्मेशन एज फॉर्मेटेड। प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है फॉर्मेट, ये किसी टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करती है एज फॉर्मेटेड। इनपुट मास्क, क्लियर यहाँ तक स्टूडेंट। ये एक एक प्रॉपर्टी आप सेट करेंगे तब आपको वहाँ पे दिखेगा लैब में, जब भी लैब होगी कराएंगे तो उसमें सेट करेंगे तब देखिएगा आप, क्लियर। हेलो, ओके। इसके बाद आता है इनपुट मार्क्स। इनपुट मार्क्स प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू मेक डेटा एंट्री इजियर and to control the values that users can enter in a text box control। इनपुट मास्क प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है टू मेक डेटा एंट्री इजियर, जो भी डेटा एंट्री हम कर रहे हैं काफी इजियर हो, एंड टू कंट्रोल द वैल्यूज द यूजर्स कैन एंटर इन अ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। कंट्रोल द वैल्यूज, वैल्यू को कंट्रोल करना, यूजर्स कैन एंटर इन द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, और एंटर कर सके यूजर्स टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। कैप्शन क्या होता है, कैप्शन एक फील्ड प्रॉपर्टी है। ये इज यूज्ड टू प्रोवाइड हेल्पफुल इंफॉर्मेशन टू द यूजर थ्रू कैप्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये यूजर को हेल्पफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए इसका यूज किया जाता है कैप्शन का, थ्रू कैप्शंस ऑन ऑब्जेक्ट्स पर। डिफॉल्ट वैल्यू, इट स्पेसिफाई अ वैल्यू फॉर अ फील्ड दैट इज ऑटोमेटिकली एंटर्ड इन द फील्ड व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज क्रिएटेड। ये क्या स्पेसिफाई करता है, डिफॉल्ट वैल्यू की किसी भी फील्ड की जो वैल्यू फॉर फील्ड के लिए एक वैल्यू स्पेसिफाई करता है, इज ऑटोमेटिकली एंटर्ड इन द फील्ड, जो कि ऑटोमेटिकली एंटर्ड किया जाता है फील्ड में व्हेन, जब न्यू रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, जब भी कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल, इन एन एड्रेसेस टेबल यू कैन सेट द default value for the city field to New York. When you add a record to the table, you can either accept this value or you can enter the name of
डिफरेंट सिटी। ठीक है, क्लियर। यू कैन सेट द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द सिटी फील्ड टू, जैसे हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी न्यूयॉर्क, तो व्हेन यू ऐड अ रिकॉर्ड टू द टेबल यू कैन ईदर एक्सेप्ट दिस वैल्यू और यू कैन एंटर द नेम ऑफ डिफरेंट सिटी, तो हम कोई भी डाल सकते हैं। इसके बाद एक आता है वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल इज यूज्ड property to specify requirements for data that are entered in a record, in a field, or in a control. When data is entered that violates the validation rule settings, you can use the validation text property to specify the message that you want to appear when the violation occurs. देखिए वैलिडेशन रूल ये होता है, सपोज तुमने देखा होगा जैसे कोई फॉर्म ऑनलाइन अगर फॉर्म फिल किया हो, सपोज कोई एंट्री अगर हमने किसी बॉक्स में छोड़ दी तो वहाँ पे रेड, उसके बगल में रेड कलर का एक स्टार बना रहता है, तुरंत आपको मैसेज आ जाता है यू हैव टू फिल दिस फील्ड एसेंशियल कंपलसरी। अब उसके आगे फॉर्म आगे बढ़ता नहीं है, आपने देखा होगा, तो उस पर वैलिडेट किया रहता है उस टेक्स्ट को, उस प्रॉपर्टी को वैलिडेट। वैलिडेट करने का मतलब होता है यू हैव टू मस्ट राइट डाउन द सम वैल्यू ओवर देयर, कुछ देना पड़ेगा तभी वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज क्योंकि उसमें वैलिडेशन लगा, उसको वैलिडेट किया हुआ, वो खाली नहीं, एम्प्टी उसको नहीं रख सकते। तो इस तरीके से आई बात समझ में। वैलिडेट टेक्स्ट भी होता है, इट स्पेसिफाई मैसेज दैट मस्ट अपीयर व्हेन अ वैलिडेशन रूल इज वायलेटेड। वैलिडेशन टेक्स्ट की मतलब अगर हमने वायलेट की कंडीशन तो एक हमें मैसेज भी शो कर दे। ऑल जीरो लेंथ क्या होता है, ऑल जीरो लेंथ प्रॉपर्टी जो होती है is used to specify if a zero length string is a valid entry in a table field. Okay, decimal places property is used to specify the number of decimal places to display numbers। ठीक है, decimal places में property is used to specify the number of decimal places to display numbers। न्यू वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नंबर्स के बीच में डेसिमल प्लेसेस का मतलब जैसे नंबर्स है उनमें डेसिमल हमें लगाना है, इस पे शो करना है तो डेसिमल भी शो कर सकते हैं। न्यू वैल्यूज में न्यू वैल्यू प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई हाउ ऑटो नंबर फील्ड्स इंक्रीमेंट। ऑटो नंबर फील्ड्स को अगर हमें इंक्रीमेंट करना है, स्पेसिफाई करना है, व्हेन जब न्यू रिकॉर्ड्स आर एडेड टू अ टेबल। तो न्यू वैल्यू का मतलब होता है जैसे कोई एक और रो इंटर कराई, एक नई वैल्यू रिकॉर्ड में इंटर कराना है, तो ओनली ऑटो नंबर फील्ड्स कैन यूज न्यू वैल्यू प्रॉपर्टी। अगर उसको ऑटो नंबर सेट कर देंगे तो फिर वो न्यू वैल्यू प्रॉपर्टी अपने आप लेता रहेगा। क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी की क्या होता है। दिस इज द मोस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डेटाबेस। प्राइमरी की, फॉरेन की, ये हमें समझना होगा। ठीक है, प्राइमरी की देखते हैं। एवरी टेबल कंटेन्स अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड स्टोर्ड इन द टेबल। देखो प्राइमरी की हम ये कहते हैं कि जब भी कोई टेबल, सपोज वी हैव टू क्रिएट अ टेबल ओवर देयर एंड वी फिल द एंट्रीज इन द टेबल, तो it should be must to all the entries should be unique। ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाइड हो, कोई कोलैप्स ना हो या डुप्लीकेट डेटा और रिडेंडेंट डेटा शुड नॉट बी अकर इन द टेबल। मेन कॉन्सेप्ट we have to apply the primary key in the table on the table is first that no duplicate or no redundant data should be occur in the table। ठीक समझ में आ रहा है। सपोज अलीना खान एक बच्चे ही है, ठीक है, अलीना खान है, जैसे ये सपोज ही वांट टू एंटर योर नेम इन द टेबल, तो अब अलीना खान एक ही बार ले, नेक्स्ट टाइम अगर यू हैव टू एंटर द अलीना खान then it should be return the message that duplicate data should not be entered in the table। तो इसके लिए हमें प्राइमरी की टेबल पे लगाना होता है। ठीक है, हमने अगर नेम पे लगा दिया तो नेम पे के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करेगा।
कहीं पे भी लगा सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक। दिस फील्ड इज कॉल्ड प्राइमरी की ऑफ द टेबल, ये टेबल की प्राइमरी की होती है। वंस प्राइमरी की सेट फॉर द टेबल, एक्सेस विल प्रिवेंट एनी डुप्लीकेट वैल्यूज फॉर बीइंग एंटर्ड इन द प्राइमरी की फील्ड। फॉर एग्जांपल व्हेन टू एम्प्लॉयज ऑफ कंपनीज हैव द सेम नेम, अगर किसी कंपनी में दो एम्प्लॉय सेम नेम के, इट इज डिफिकल्ट टू रिलेट टू द एम्प्लॉयज अनलेस देयर फर्स्ट नेम इज डिफरेंट। तो वहां पर हमें बहुत ही डिफिकल्ट होता है रिलेट करने में एम्प्लॉयज में, जब तक देयर फर्स्ट नेम इज डिफरेंट, जब तक उसका उनका फर्स्ट नेम डिफरेंट ना हो, अलग ना हो। अ यूनिक रेफरेंस value can be attached to their detail to ensure that each player is identified more precisely, just like how each student in a class has a roll number। जैसे आपकी क्लास में अगर दो दो लोग एक सेम नाम के हैं तो उनके आगे फर्स्ट या सेकंड लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है कि नहीं? हेलो, तो वही चीज है। इसके बाद हम आते हैं फॉरेन की। क्लियर हो गया प्राइमरी की? एनी डाउट अबाउट प्राइमरी की? ओके, चलिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा फॉरेन की। अ फॉरेन की इज यूज टू रिलेट टू टेबल्स। फॉरेन की क्या रिलेट करता? टू टेबल। मतलब सपोज करो यू हैव टू क्रिएट टू और थ्री टेबल्स, अब यू हैव टू ज्वाइनिंग द टेबल्स ओवर देयर। You want to fetch a data from the tables of second टेबल से अगर हमें डेटा फेच करना है using the table first, तो we have to joining over there via foreign key। Since a field in the one table can be replicate across other tables, there should be a way to maintain a relationship between the two tables। अगर दो tables के बीच में हमें relationship create करना है, this relation is implemented through the concept of foreign key। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे फॉरेन की के इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो जब वी हैव टू क्रिएट अ फॉरेन की ऑन द टेबल्स, तो ऑल द टेबल्स आर अविरल। आवाज आ रही है? अगल बगल एक जगह शांति से बैठा कर रख लो तुम लोग। तो टेबल्स वर रिलेटेड विथ ईच अदर वाया फॉरेन की, क्लियर। तो ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो रहा है सभी को? चलिए, हेलो, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम बात हैं, क्या कह रही? अच्छा, वो आवाज आती है ना बेटा, या तो माइक ऑफ करो या तो ऐसे जगह रूम में बैठा करो जहाँ आवाज ना हो अगल बगल। तो आवाज उधर से सुनाई देती है ना, अब उनकी आवाज सुनाई दे रही जो मम्मी का बात कर रही है, ये होता है कि हाँ डिस्टर्ब होता है क्या पर। तो ठीक है, सेविंग अ टेबल, द स्टेप्स टू सेव अ टेबल आर, ठीक है, क्लिक द फाइल मेन्यू। अब कोई भी टेबल हम सेव कैसे करते हैं? फाइल मेन्यू में जाएंगे, क्लिक द सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स होगा। एंटर द नेम एज स्टूडेंट डिटेल्स इन द टेबल नेम टेक्स्ट बॉक्स, वहाँ पे टेबल नेम डालेंगे और क्लिक ओके बटन कर देंगे, ठीक है। द टेबल क्रिएटेड विल बी सेव्ड विद द नेम स्टूडेंट डिटेल्स। स्टूडेंट डिटेल्स हमने डाल दिया, इस नाम से टेबल सेव हो जाएगी। क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग डेट। अब ये तो हमारा यहाँ तक था डिजाइन व्यू के थ्रू टेबल क्रिएट करना, क्लियर। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। तो अब क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग डेटा सीट व्यू। डेटा सीट व्यू के अकॉर्डिंग हम कैसे क्रिएट करेंगे? अब ये सेकंड ऑप्शन है, एक डिजाइन व्यू था, अब डेटा सीट व्यू। वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ टेबल यूजिंग अनदर ऑप्शन कॉल्ड डेटा सीट व्यू। In the data sheet view, we cannot set the data type of a field। डेटा शीट व्यू में हम डेटा टाइप नहीं डिफाइन कर पाएंगे, वहाँ सेट नहीं कर सकते। चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फील्ड और सेट अ प्राइमरी की, वहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज चेंज करनी पड़ेगी फील्ड की और वहाँ पे प्राइमरी की सेट करनी पड़ेगी। टू क्रिएट अ टेबल इन डेटा शीट व्यू क्या करेंगे? पहले ओपन द डेटाबेस, ओपन द न्यू टेबल डायलॉग बॉक्स, क्लिक द डेटा शीट व्यू ऑप्शन, डेटा शीट व्यू ऑप्शन में जाएंगे,
तो इस तरीके से डेटा शीट व्यू दिखेगा। देखिए एक फिगर बना हुआ है, फील्ड 1, फील्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पेज नंबर 54 पे आइए।